I want you to note down important points and you have to be very quick. If you're not quick, then I will go ahead and you have to again see the video to note it down, right? Because we need to finish this one small topic today. There are certain more topics associated with this chapter. Okay, so the first topic which we studied was reflection in light. Reflection essentially means bouncing back of light in the same medium after striking a surface. Bouncing back, reflection. It was very simple. So, in reflection, we were uh, concerned with mirrors, because mirrors are those surfaces at which certain specific kind of reflection occurs, and a very unique phenomena occurs, that is the formation of images. So we studied about plane mirrors, we studied about spherical mirrors. So that was reflection. That was one aspect of the concept of light. Now this is another aspect, which is refraction. Today's topic, refraction. Come ahead. There is one seat here, one. You can sit with anybody, no problem. Don't be worried, you won't get COVID. Okay. So today's topic is refraction. In refraction, you are concerned with what happens when light travels in a medium and suddenly it changes the medium. That is, when it enters from one transparent medium to another transparent medium. What happens? Okay. What happens when light moves from one medium to another? That is the question we will try to answer. The light changes its path while moving from one medium to another. In other words, we can say that light bends at the interface of two media. Okay, so this phenomena is refraction. So note down the definition. Refraction is the phenomena of bending of light as it passes from one transparent medium to another transparent medium. Complete likhna pura. Just a moment. Refraction is the phenomena of bending of light as it passes from one transparent medium to another transparent medium. That is what refraction is. So if you want me to show you how it looks like, the first thing which we draw is a straight line. So first thing we draw is a straight line. You can also draw this diagram if you want. This straight line represents boundary separating two media. For example, above this line there is air. Below this line there is water. So you can also call it a water surface. Air does not have a surface, water has. So this is the boundary separating air and water, separating two media. Remember, medium is singular. इसका जो plural है, that is media. So when I say boundary separating two media, it is actually two mediums. Okay, we don't say mediums, we say media.
ठीक है, अब ये दो मीडिया हो गए. नाउ व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ रे ऑफ लाइट. लेट्स ड्रॉ अ रे ऑफ लाइट. So this is the ray of light which is striking the boundary separating two media. ठीक है. Now this ray of light, after entering the other medium or at the junction of the two media, it will bend. ठीक है. So we have to draw a reference line which is known as normal. Normal is not actual line, it is not physical, it is just a reference. It is imaginary. ठीक है. So normal is a imaginary line drawn at the point of incidence. This is the point of incidence. Point of incidence is the point at which this incident ray is striking. Okay, so this is the normal. Normal is always perpendicular, remember, to the boundary surface separating two media. You know what is this angle? Angle of incidence. ठीक है. Now the ray of light will bend from here. So we have to draw another ray of light. From here, which will be bending. You see, it is bending. The ray of light has bent. What is this angle over here? Angle of refraction. Refraction. ये दोनों एंगल थे हमको रिफ्लेक्शन में, जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे हम. बट वहां पे उनको क्या बोला जाता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन. यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. सो दिस इज द फिनोमेना. मतलब ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका? रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है. बट एक चीज ये डेफिनेशन में नहीं बोला है, जो मुझे भी बोलना है तुमको ऐड करने के लिए. एज इट पासेस obliquely from one transparent medium to another transparent medium means whenever a ray of light enters obliquely, that is slant, not straight, slant, from one transparent medium to another, only then it bends. Straight rays do not bend. Normal rays do not bend. What do you mean by normal rays? Normal means the rays which make an angle of 90 degree with the surface separating two media. They don't bend. So ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अगर तुमने डेफिनेशन लिखा है तो उधर ओब्लिकली लिख दो, क्योंकि ओब्लिकली के बिना ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से अधूरा है. ठीक है. ओके, जस्ट इमेजिन के मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. लेट मी जस्ट टेक माई डायग्राम समवेयर एल्स, मोर इन मोर स्पेस. ठीक है. लेट मी जस्ट शिफ्ट इट ओवर हियर. एंड लेट मी मेक इट लिटिल बिगर. ठीक है. क्लियर है? अभी दिख रहा है सबको? अब जस्ट इमेजिन, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बनाऊंगा. दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, but this time the ray of light is going from water to air. Then what will happen? Will refraction happen? Definitely it will happen, because in this case also the ray of light is entering from one transparent medium to another transparent medium. Does not matter in which order, from where it is entering to where, it does not matter. Only thing, they should be two different transparent medium, and the ray of light should enter obliquely. Then refraction will happen. Now
Here the ray of incident ray of light is drawn like this. This is the arrow, this is the angle of incidence. ठीक है, सब कुछ सही है. अच्छा, इसको नेमिंग देना बहुत जरूरी है. नेमिंग भी तुम्हें सिखाता हूं मैं. सपोज ये है ए, तो ये होगा लेट्स से ओ. व्हाट इज ए ओ? Incident ray. Incident ray. This is n, this is n dash. What is n dash? Normal. यहां भी मैं लिख सकता हूं a o n n dash. What is angle a o n? Angle of incidence I. ठीक है. What is angle? अच्छा, ये क्या होगा? o b. What is o b? o b. Refracted ray. Refracted ray. What is angle BON dash? Angle of refraction. ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए. सेकंड केस मैंने बता रहा था, अभी डिस्कस कर रहा था, जिसमें वाटर से एयर में जा रही है रे ऑफ लाइट ओब्लिकली. रिफ्रैक्शन तभी भी होगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा ऐसे. यू सी व्हाट हैपेंड? द रे ऑफ लाइट बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल. मतलब आर थोड़ा बड़ा है यहां पे. दैट इज ओ बी. The ray of light bent away from normal. So एक चीज तो क्लियर हो गई यहां पे कि when a ray of light enters from air to water, the angle of incidence is greater than the angle of refraction. But when it enters from water to air, the angle of incidence is smaller than angle of refraction. ये भी साइड में लिख दो, क्योंकि ये सारी चीज तुरंत तुम्हारे नोटिस में आनी चाहिए. ये एयर टू वाटर है और उसके लिए I is greater than R. This is water to air, for which I is smaller than R. ठीक है. The ray of light bends towards the normal when ray of light enters from air to water, and it bends away from the normal when it enters from water to air. थर्ड केस विच आई वॉन्ट टू डिस्कस, अभी इसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले थर्ड केस इज व्हाट इफ द रे ऑफ लाइट enters straight normally, will there be refraction? Refraction essentially means, refraction का मीनिंग क्या होता है? रिफ्रैक्शन के दो मीनिंग है, मतलब ये दोनों चीज होती है रिफ्रैक्शन में. एक तो होता है क्लियर बेंडिंग ऑफ लाइट, क्लियर क्लियर वो तो होता ही है. दूसरी चीज जो होती है दैट इज चेंज ऑफ स्पीड. लाइट की स्पीड चेंज होती है रिफ्रैक्शन. सो क्या हो रहा है इसमें? बेंड हो रहा है, यस. स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, यस. कैसे चेंज हो रही है मैं दिखाता हूं. तो यहां पे एयर है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या है तुम्हें पता है? एयर में स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल क्या है जनरली? चलो, स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल है सी. म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई विल कम टू दैट, दैट्स थोड़ा फार अवे. पहले तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं. स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल है सी. सी की वैल्यू क्या होती है पता है? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 times 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये है सी. ठीक है. अच्छा, ये जब वाटर में जाएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी VW. VW मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. बट ये जब वाटर में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज. सो C इज ग्रेटर देन VW. इसको समझ में आएगा? इसको कैन यू अंडरस्टैंड दिस शॉर्ट फॉर्म?
When ray of light enters from air to water, its speed decreases, and that's why it bends. That is the reason. Means रिफ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक तो बेंडिंग होता है ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड, ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड, मतलब रिफ्रैक्शन मीन्स बोथ द थिंग्स. रिफ्रैक्शन ओनली डज नॉट ओनली मीन बेंडिंग. या दैट इज इन लेमैन्स टर्म्स, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज समझा रहा हूं इसकी, इसलिए ये सारी चीजें ध्यान में रखना. सो व्हाइल यू आर ड्राइंग, टेकिंग नोट्स, लिसनिंग टू मी, ऑल्सो रिमेंबर दीज थिंग्स, बिकॉज इसके ऊपर ही तुम अपने आंसर बिल्ड करो. कोई रेडीमेड आंसर लर्न नहीं करना है अपने को. ये सब होता था थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में, अब नहीं होता. अब तुम्हें आंसर बिल्ड करने पड़ेंगे. हैव यू सीन द न्यू पेपर पैटर्न? इट्स मोर ऑफ, यू कैन से, इम्प्रॉम्प्टू एप्लीकेशन बेस्ड. तुम्हें ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, ना तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, ना कहीं भी. स्टिल यू हैव टू बिल्ड द आंसर समझ के. सो समझो, ये बहुत जरूरी है. नहीं समझ में आ रहा है पूछो, तो मैं तुम्हारे साथ और डिस्कशन करूंगा टू मेक माई पॉइंट क्लियर. अदरवाइज सी व्हाट आई कैन डू, I can just go to the left and I can read all this, and it will get so boring for you. I will read it at times, but before I read, I need to discuss so that it does not become boring. You know the idea कि story क्या है. अच्छा, यहाँ पे second case में the ray of light is going from water to air. क्या होगा? Speed increases. ठीक है, यहां पे वाटर में स्पीड VW थी जो कम थी, और जैसे ही वो एयर में गया तो स्पीड बढ़ गई. मतलब जनरली एक चीज तो क्लियर है कि एयर में लाइट की स्पीड मैक्सिमम है. एयर या फिर वैक्यूम में, एयर या फिर वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 टाइम्स 10⁸ मानी जाती है. एयर और वैक्यूम में कोई फर्क नहीं है स्पीड ऑफ लाइट में. बट जैसे ही वो वाटर में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और इसलिए बेंडिंग. बट यहां पे बेंडिंग देखा थोड़ा अलग टाइप का हुआ. कैसा हुआ बेंडिंग? द रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्ड फ्रॉम वाटर टू एयर. सो बेंडिंग हुआ, चेंज इन स्पीड हुआ, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ. तो ये दोनों में रिफ्रैक्शन हो रहा है. मैं थर्ड केस डिस्कस कर रहा था. थर्ड केस में द रे ऑफ लाइट एंटर्ड from air to water, but it did not enter obliquely. It entered normally. This is, you can say, this is incident. उधर नोट कर लो. Incident normally. Incident normally. Normally मतलब नॉर्मल इज नॉट दैट नॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल वाला नॉर्मल. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है. वो इंग्लिश का डिक्शनरी मीनिंग मत ले लेना, एबनॉर्मल, नॉर्मल, नॉट नॉर्मल. इंसिडेंट नॉर्मली. ठीक है, वेन एवर इट इज इंसिडेंट नॉर्मली, it passes or it enters the another medium normally. It enters the medium without bending. There is no bending. There is no bending in this case. So what do you think? Refraction takes place or not? We say no. You know why? Because refraction means two things. Both should happen. बेंडिंग एज वेल एज चेंज ऑफ स्पीड. यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है क्या? चेंज ऑफ स्पीड हो रहा है क्या? यस. हाँ, चेंज ऑफ स्पीड तो होगा ही क्योंकि वो दूसरे मीडियम में जा रहा है, बट बेंडिंग नहीं हो रहा ना, इसलिए रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है. सो वी से दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स नॉर्मली from one transparent medium to another transparent medium, no refraction takes place because it does not bend. One important question in this scenario: can you tell me what is the angle of incidence here? Some people, they think that it is 90. It is not. It is not because the angle of incidence is the angle between normal and the incident ray. यहाँ पे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल को इंसिडेंट है. को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है.
अगर एंगल नहीं है तो दोनों के बीच का एंगल 0 है. Not only angle of incidence, the angle of refraction is also 0. ये एक ही ऐसा केस है जब I और R दोनों इक्वल है, 0 है, इक्वल टू 0 है, इक्वल नहीं, इक्वल टू 0. ठीक है. सो दिस इज यू कैन से द बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन. अच्छा, अगर मैं तुमसे फिर से पूछूं कि व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपन, क्या बोलोगे? Yes, due to the change in speed. Because on entering from one transparent medium to another, the speed of the light changes. That's why refraction takes place. That is the reason of refraction. अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो रिफ्रैक्शन नहीं होता. इसका एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट भी है. फिजिकल एक्सपेरिमेंट ये है कि यू हैव टू you can do it at home. You have to build a small barrier or a speed breaker at home. ठीक है, नॉट नेसेसरी बट यू कैन ट्राई. छोटा सा स्पीड ब्रेकर जैसा बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर एक बॉल को, छोटी सी रबर बॉल को स्ट्रेट पहले तो फेंको, स्ट्रेट थ्रो करो. तो क्या होगा पता है, वो ऐसा क्रॉस होके चली जाएगी, बट उसकी स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज ये स्पीड ब्रेकर है ना वहां पे. अब तुम क्या करो पता है, थोड़ा साइड से ऐसे एंगल पे फेंको उसको. सो यू विल नोट दैट व्हेन इट crosses that barrier, its speed will change. Its speed will change and its direction will also change. अगर हो सके तो और एक चीज करना कि बैरियर के वो साइड पे कार्डबोर्ड रख देना, मतलब मीडियम भी चेंज कर देना. तो ये साइड टाइल्स, जो फ्लोर तुम्हारे घर के, और वो साइड कार्डबोर्ड. मीडियम भी चेंज हो गया, बैरियर भी आ गया, स्पीड भी चेंज होगी, बेंड भी हो जाएगा. तो फिजिकली होता है ये, फिजिकली होता है, मतलब फिजिकल पार्टिकल्स के साथ होता है. तो इसका क्या मतलब है, लाइट फिजिकल पार्टिकल से बनी हुई है. लाइट किससे बनी हुई? फिजिकल पार्टिकल से बनी हुई है. तुम्हें क्या लगता है, लाइट कुछ पार्टिकल से बनी हुई है? तो लाइट का वेट भी होता होगा. तो तुम पे तो भी बहुत वेट है, लग रहा है, फील हो रहा है वेट? ऐसे हाथ करो, लग रहा है क्या कुछ वेट? नहीं. तो फिर ये ऐसा क्यों बिहेव करता है? बहुत अजीब है ना. बताता हूं आंसर. सी, लाइट का जो नेचर है ना, उसके ऊपर थोड़ी बात करनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड दिस इन अ डीपर वे. नेचर ऑफ लाइट. सो लाइट is supposed to be made up of, or is believed to be made up of, waves by some scientists. And some other scientists, they think that light is made up of particles. तुमने सुना होगा light rays, light waves. These words are very common. But have you heard light particles? You are hearing now. And I gave you proof also. Refraction is the proof that light is made up of particles. ये जो particles है ना, if you search, you will find a word, photon. So light is made up of photon particles. So what are these photons? Photons are some energy packets. ये कुछ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिसके फॉर्म में लाइट हम तक पहुंचता है. एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज photons. So light is believed to be made up of photons, and that's why we see bouncing back of light. Bouncing back is essentially the property of matter. Matter ही तो बाउंस होता है. टकरा के बाउंस होना, फोर्स एक्सर्ट करना, बाउंस होना, ये सब मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव्स की नहीं है. वेव तो अलग तरीके से बिहेव करता है. अगर ये वेव के अंदर कुछ पार्टिकल होते तभी तो बाउंस कर रहे हैं ये, तभी तो अपनी स्पीड चेंज कर रहे हैं. तो जो लोग सोचते हैं कि लाइट पार्टिकल से बना है, वो लोग बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि लाइट वेव से बना है.
तो उनको पूछा गया कि आपके पास क्या प्रूफ है कि लाइट वेव से बना गया। तो उन्होंने बोला इंटरफियरेंस, ये एक फिनोमेना है लाइट की जो उसका वेव नेचर को दिखाता है। ये तुम अभी नहीं पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। अगर साइंस लोगे तो 12th फिजिक्स में इंटरफियरेंस पढ़ोगे। फिर और एक है पोलराइजेशन। ये इंटरफियरेंस पोलराइजेशन को समझने के लिए पार्टिकल नेचर लाइट का काम नहीं आता है, वेव नेचर से समझना पड़ता है लाइट को। मतलब इफ यू वांट टू स्टडी लाइट, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, हमारा टॉपिक ही लाइट है, तुम्हें उसके दोनों नेचर को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। So in class 10th, you are focusing on this particle nature. By class 12th, you will be focusing on the wave nature as well. And then comes the dual nature of matter. This happened around 100 years ago. That is in 20th century. In the beginning of mid 20th century, scientists already had researched and proved it that everything has dual nature. Light also. So light has a dual nature. That means light is also a particle and same time it is also a wave. But what exactly light is, ये अभी भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। अभी भी, मतलब अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि लाइट है क्या। सो डोंट कम टू कंक्लूजन्स। साइंस में कभी भी नहीं बोलना कि मुझे सब पता है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता है, अभी तो चल रही है रिसर्च, ठीक है। और तुम ये भी मत सोचना कि मुझे भी सब पता है क्योंकि मैं टीचर हूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूं आजकल क्या है, क्या हो रहा है, एंड यू हैव टू बी अपडेटेड, तभी तुम्हें समझ में आए। डोंट थिंक कि यही है लाइट, नहीं है। अच्छा ये तो ठीक है, लाइट के बारे में है। मैंने अभी बोला एक वर्ड, डुअल नेचर। डुअल नेचर मैटर का भी होता है। मैटर हैज डुअल नेचर। सो साइंटिस्ट्स हैव प्रूव्ड दैट मैटर is also made up of particles and waves. मतलब तुम जिस चेयर पे बैठे हो, तुम्हारे सामने जो डेस्क है, वो मैटर नहीं है, वो वेव है। और ये जो लाइट है वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। ये दोनों सब है, सब कुछ सब है। जस्ट इमेजिन, सो माइंड बॉगलिंग एंड कंफ्यूजिंग इट इज। फिजिक्स इज सच। और यहीं से शुरुआत होती है मॉडर्न फिजिक्स की। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटन, हिज लॉज, मैकेनिक्स, देन साउंड, दिस दैट, ये सब बेसिक चीजें थी। वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब क्लासिक में आता है। फिर धीरे धीरे मॉडर्न फिजिक्स आया, जहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां से मतलब जो दिमाग खराब करने वाली क्रिस्टोफर नोलन टाइप की जो चीजें होती है, वो आती है मॉडर्न फिजिक्स में। यू नो क्रिस्टोफर नोलन, किसी को पता है? नोलन is a director, yeah, is a director who has directed which movie? Inception, Interstellar, and now Tenet. Have you seen Tenet? So don't see it, otherwise you'll really go crazy, mad, because it talks about time. Time is another thing which nobody has understood. Time क्या होता है नहीं पता है किसी को भी, अभी तक रिसर्च चल रही है। सो आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसने ये सब की रिसर्च की शुरुआत की, थियरी ऑफ रिलेटिविटी देके। And then the research is still continued, and this is known as modern physics or quantum physics. ठीक है? So we will not go there, but there was a small need to give you this idea about this dual nature of light, because the nature of light which we are concerned with right now is the particle nature. इसी से तो स्पीड क्यों चेंज होता है, ये सब समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमको समझ गया है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। I didn't get you. What do you ask? एयर टू वाटर? हाँ, नॉर्मली वाले रेस तो रिफ्रैक्ट नहीं होते। हाँ, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ तो रिफ्लेक्ट होंगे। हाँ, मतलब एक चीज और जो उसने बोला वो ट्रू है। लेट मी शो यू ओवर हियर। मेरे पास यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन का डायग्राम दिख रहा है तुमको, जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही रे दिखाई है। दिस इज जस्ट फॉर यू टू नॉट गेट कंफ्यूज्ड।
सिर्फ इतना सिंपल दिखाया है, बट एक्चुअली क्या होता है पता है? ये होता है एक्चुअली, वाटर की सरफेस पे जितनी इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करती है उसमें से सम पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट गेट्स रिफ्रैक्टेड। मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होता है, बट हम ये नहीं पढ़ते हमेशा, हम सिर्फ अपने डायग्राम को क्लियर रखते हैं, रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। एक्चुअली दोनों साथ में होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, क्योंकि वाटर की सरफेस से कुछ रे ऑफ लाइट बाउंस बैक भी होती है और कुछ उसके अंदर भी जाती है। एक्चुअली बाउंस बैक ज्यादा होती है और अंदर कम जाती है। कभी तुम अंडर वाटर जाओगे तो तुम देखोगे कि इट्स नॉट वेरी लिट, इट्स नॉट वेरी ब्राइट इनसाइड वाटर, it's little dark, little dim. Even if it's like direct sunlight is falling on it, it's little dim and cozy kind of a feeling underwater. अगर कोई गया है तो देखेगा, देखा होगा. So most of the light which is incident on the surface of water gets reflected. So you also find that kind of a shine when you look at the direct light reflected from the surface of water. Surface of water can behave as a surface of mirror. If it is undisturbed, still water can behave as a mirror surface. ठीक है? Now let's talk about a new term, refractive index. Refractive index. Laws of refraction तो नहीं बताया अभी तक. Okay, let me give you an idea of refractive index from my perspective rather than reading this. So to understand refractive index, I want you to note down first laws of refraction. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज इंसिडेंट रे, refracted ray and normal at the point of incidence. Incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. Incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. ऐसा एक सेम लॉ तुमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, बट वहां पे रिफ्रैक्टेड रे नहीं था, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था. सेम लॉ. इसका क्या मतलब है सेम प्लेन का? मतलब डू यू रिमेंबर यूक्लिड ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 9th? वहां पे हमने प्लेन को डिफाइन किया था. उसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लेन इज एनी प्लेन सरफेस. ठीक है? सो इफ दिस इज अ प्लेन सरफेस, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है और यहाँ पे नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे तुम्हारे सब तरफ जा रही है, प्लेन से निकल के बाहर. दे ऑल आर इन टू डिमेंशंस. टू डिमेंशंस मतलब प्लेन पे. Nobody can leave that two-dimensional plane from incident ray, refracted ray and normal. They all are in one same plane. इससे ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये इंसिडेंट रे ऐसे अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर नहीं जाएगी प्लेन के अंदर, और रिफ्रैक्टेड रे अंदर से बाहर नहीं आएगी. ऐसा नहीं हो सकता. दे ऑल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है? सो दिस वाज अ, you can say, the better law out of both. The second law, this is not good one.
not good means it's little difficult to understand, is that sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction is always a constant. Sine of angle of incidence is always upon sine of angle of refraction is always a constant, and this constant is known as refractive index of medium 2 with respect to medium 1 for a given pair of media. Sine I upon sine R is constant, which is known as refractive index. This is a new quantity which we are going to discuss for some time now. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Don't get confused with this. I'm going to explain. इसको पूरा dissect करेंगे हम, छोटा छोटा करके समझ लेंगे. Don't worry. ठीक है. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 for a given pair of media. See, media is plural of medium. Pair of media means two medium. Always remember there will be two medium because we are talking about refraction. Ray of light enters from one medium to another. So there will be a pair of media. Okay? So this is the refractive index. Now what is refractive index? First, sine, you know what is sine, right? Trigonometric ratio of angle of incidence. It is an angle, sine of an angle, upon sine of angle of refraction. ये जो रेशियो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है? इसका सिंबल है म्यू. इसका सिंबल है म्यू. म्यू का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं. ठीक है, सबसे पहले समझ लो कि ये जो म्यू है ना, इट इज अ प्योर नंबर. इट्स अ नंबर. इट हैज नो यूनिट. You know why it has no units? Because it is the ratio of two similar quantities. Sine of any certain angle is a number, and sine of another angle is another number. Number upon number will give you one another number. Number has no unit, so it's a pure number. It has no unit. So refractive index has got no unit. Refractive index has got no units. It has no units. ठीक है, इट्स जस्ट अ नंबर. तो ये नंबर क्या बताता है? बताता हूं मैं, वो भी बताता हूं. सबसे पहले तुम्हें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. तो यही एग्जाम्पल जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, इसको ही ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, एयर से वाटर में बेंड हो रही है. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर में बन रहा है. तो यहां पे कैन आई फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यस. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी तुम्हें सेकेंड लॉ में बताई, मैंने उसमें क्या लिखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखा है ना तुमने? ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. अब यहां पे मीडियम 2 कौन सा है? दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2. मीडियम 2 कौन सा है? वाटर. मतलब जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है वो है सेकेंड मीडियम, मीडियम 2.
तो यहां पे लिखूंगा मैं W। और ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? एयर से, तो यहां पे मैं लिखूंगा A। सो इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू is the refractive index of water with respect to air। हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टू मीडिया of the second medium with respect to first medium, but there should be two media, otherwise you cannot define refractive index। क्योंकि टू मीडिया नहीं होगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से होगा? ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, व्हाट इज इट इक्वल टू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई किधर है? ये रहा आई। आर किधर है? ये रहा आर। तुम दोनों मेजर कर सकते हो, यस, प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हैं हम, अगर हमने ये देख लिया तो रिफ्रैक्शन। और हम लोग अगर वैल्यू डाल दे आई और आर की, तो कैलकुलेटर से साइन ऑफ दैट एंगल निकाल के इसको दोनों को डिवाइड करके हमको वैल्यू मिल जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज फाउंड। अच्छा, इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है, it comes to approximately I want you to just reconfirm from your textbook, it is approximately 1.3 or 4/3। can you confirm in your textbook? Refractive index of water with respect to air, is it 4/3? Sorry, that is glass, 3/2। 4/3 होना चाहिए। इज इट 1.3? ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, दैट इज एयर, ग्लास, सॉरी, वाटर टू एयर। मैं बोल रहा हूं एयर टू वाटर जाना चाहिए रे ऑफ लाइट। 1.3, दैट इज 4/3। या, सो दिस इज 4/3 और 1.333। प्लीज ये नोट करो और इसका मीनिंग मैं तुम्हें बता दूं। ओके, लिखा इतना? अब ध्यान से सुना जो मैं बोल रहा हूं। तो तुमने अभी देखा कि मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग बताया, फॉर्मूला बताया, बोला है कि वो नंबर है, नंबर भी बता दिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, बट इसका मीनिंग क्या है अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता, क्या है, इसको ढूंढने की जरूरत क्या है? इट टेल्स यू दैट हाउ मच the speed of light decreases or increases when it enters from one media to another. It tells you that. So when I say that refractive index of water with respect to air is 4/3 or 1.33, I mean that speed of light decreases by 1.3 times when it enters from air to water. Speed of light decreases by 1.3 times when it enters from air to water. जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है, सॉरी, जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है एयर से वाटर में, तो स्लो डाउन करती है, हमने पहले ही पढ़ा था, बट बाय हाउ मच? बाय 1.3 टाइम्स। दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट विच वी गेट विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना डिक्रीज होती है स्पीड ऑफ लाइट? दिस इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
Or we can also rephrase this statement. Speed of light is 1.3 times slower in water as compared with speed of light in air. वाटर में स्पीड ऑफ लाइट 1.3 टाइम्स स्लोअर है as compared with the speed of light in air. This is what you learn from the refractive index of water with respect to air. ठीक है. नाउ आई थिंक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, नंबर होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब तुम्हें समझ में आया. Let me give you another formula for refractive index. One more formula. So the refractive index does not have only this formula. There is one more formula. But before going there, let me tell you one more fact. कोई बोलेगा सर कि ये जो I और R है ये कोई फिक्स्ड होना चाहिए या इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है? नहीं होती है. नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही तुम I चेंज करोगे R भी चेंज होगा. As you change I, R will also change. So you put those particular values in I and R. जिस इंसिडेंट एंगल पे तुम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो और उसके रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो तुम्हें मिल रहा है, वो दोनों की वैल्यू जब तुम इस रेशियो में डालोगे ना, यू विल ऑलवेज गेट 1.3. No matter what is the angle of incidence, you will always get 1.3, given that the speed of light should the ray of light should enter from air to water obliquely. Whatever may be the angle of incidence, the angle of refraction, respective angle of refraction should be suitable, will be suitable. And if you put those angles in this formula, you will get that particular number, that is 1.3 in this case. ठीक है. So it is a constant. ये जो है ना, it is a constant number. 4/3 और 1.333 is a constant number for the pair of air and water. Air और water के लिए क्या है? ये constant है. ठीक है. Another formula I was giving you, refractive index. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, V1 by V2. Speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, V1 by V2. This is another formula of refractive index. मतलब सिर्फ वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन से नहीं, तुम ये वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया कितना है. ठीक है. सो लेट्स से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. मतलब रे ऑफ लाइट, अगर तुम सिर्फ इतना देखते हो तो क्या तुम बता सकते हो रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर टू वाटर. इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर. ठीक है. जो पहला आया उससे रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है दूसरे में. हमेशा याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी भी. ठीक है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोला जाता है इसको. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. मतलब हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हैं? वाटर का. ठीक है. सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? V1 by V2. V1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन
एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का सिंबल मैंने बताया तुमको क्या था, c, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, vw। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा, कम होगा। कैन यू टेल मी, बुक से देख के बता सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, उधर ही जो तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताया था ना 1.3, 4/3, उधर ही कहीं होगा। वन 1.33 इंटू 10⁸ नहीं, स्पीड ऑफ लाइट चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं। हम लोग सीधा गूगल पे सर्च करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। टू 2.25 इंटू 10⁸, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में करोगे तो और 3 जीरो आ जाएंगे, दैट इज 2.25 इंटू 10⁸। अब ये याद रखना, ठीक है, कितना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, 2.25 इंटू 10⁸। सही है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमें म्यू WA पहले ही मिल चुका है, कितना है 1.33, राइट। ये फॉर्मूला से भी सेम आंसर आना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें पता थी, स्पीड ऑफ वाटर मैंने नहीं बताया, गूगल पे ढूंढा, तुम्हारे सामने लिखा है, मतलब आंसर सेम आना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये कट करूंगा। अब क्या करूंगा मैं, 300/225 लिखूंगा, सही है। किससे कट होगा ये, 25 से कट होगा। 25 12 एंड 25 9, सही है ना। 25 12 25 9, 3 4 एंड 3 3, कितना आया, आया कि नहीं सेम। 4/3 कितना होता है, 1.333। मतलब इस फॉर्मूला से भी तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ सकते हो। मतलब अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना है, यू नीड ईदर sin I अपॉन sin R और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। किसी भी फॉर्मूला से तुम गिवन पेयर ऑफ मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो तुम स्पीड ऑफ लाइट भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर तो तुम्हें पता ही है, तो किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट तुम निकाल सकते हो। हाँ, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वन मोर वे ऑफ फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, डू यू नोटिस वन थिंग, कि जो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहा हूं, ये दोनों केस में रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है। वॉट इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग, मुझे बताना क्या है ये, द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो हम यहां पे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चलो, मेरे पास sin I sin R नहीं है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, वेरी गुड, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब नोट कर लेना तुम, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये सब काम आता है। देखो तुम्हारे सामने ही काम आ रहा है, ट्रिवियल क्वांटिटीज है बट काम आती है, ठीक है। अब क्या करूं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कट, 10⁸ कट, 3/2 कितना हो गया, 1.5।
अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था, क्या स्टेटमेंट था कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बाय 1.3 टाइम्स व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर। तो यहाँ पे ग्लास के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट बना सकता हूं मैं? कैन यू टेल मी? Perfect. Speed of light decreases by 1.5 times when it enters from air to glass, or in glass light travels 1.5 times slower as compared with air. Can you write that statement? उसके नीचे ही लिखना, ये जो कैलकुलेशन किया है उसके नीचे। We'll talk about that. We'll talk about that. ठीक है, अभी तक सब समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि दिस इज लाइक वेरी टेक्निकल स्टफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डील करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि यहां पे तुम्हें मल्टीपल फॉर्मूले फॉर द सेम क्वांटिटी को डिस्कस करना है। एक बार विथ रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एन एंगल, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। So it can get little tricky and difficult and confusing, but I'm trying to make it very very slow and I'm trying to discuss everything. ठीक है? अच्छा, now yes. Sine of angle of incidence. Just angle. हाँ. No, not the ratio of angles. It is the ratio of sine of that angle. For that you need a very good knowledge of trigonometry. मैं तुम्हें एक बताता हूं। तुम्हें साइन का सारे वैल्यूज याद है? बताओ मेरे को। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है, यहां पे एंगल देख रहे हो तुम, क्या स्टेप्स है? 30 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, ये स्टेप्स है एंगल के इंक्रीज के। मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। यहां पे एंगल कितना है? यहां पे एंगल कितना है? एंगल डबल हुआ, एंगल डबल हुआ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ दैट एंगल? डिड इट डबल? डिड इट बिकम 1? नहीं। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स does not follow the angle, because angle डबल होता है तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डबल नहीं होती है। बट साइन ऑफ दैट एंगल जब डबल होता है तब वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डबल होती है। यू अंडरस्टैंड? मीन्स इफ एंगल is directly proportional to, you mean to say, refractive index, then the formula will not be correct. मतलब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन थीटा 2, where theta 1 is angle of incidence, theta 2 is angle of refraction. But that does not match with the figures. What matches is the sine of that angle, because sine of that angle changes not in a direct variation. The variation in which sine of that angle changes is different. It is not direct variation कि एंगल को डबल कर दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए साइन को यूज करते हैं हम लोग। और इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे का रीजन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है कि अगर तुम ये वाली फिगर में, ये वाली फिगर दिख रही है, यहां पे अगर तुम दो ट्रायंगल कंप्लीट करोगे,
ठीक है, और ये तुम्हारा आई और आर है जो तुम्हारा थीटा है, तो साइन क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये थीटा है, उसका ऑपोजिट ये वाली साइड है, ये वाला, ये दिख रहा है, लेट मी हाईलाइट इट, डू यू सी दिस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे भी उसी लेंथ पे हम लोग ऑपोजिट ले लेते हैं, अपॉन हाइपोटेनियस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल हमने कंसिडर किए, दोनों की हाइट सेम है, सपोज हाइपोटेनियस की वैल्यू और ऑपोजिट की वैल्यू अलग अलग होगी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो है दैट इज साइन, एंड दैट चेंजेस नॉट इन अ डायरेक्ट वेरिएशन। सो तुम थीटा पे नहीं लगा सकते उसका, मतलब फॉर्मूला में यू कैन नॉट यूज थीटा, they change in a very weird way. Trigonometry is such that this ratio of sides changes in a very weird way. So that's why it is sin I upon sin R. And this is also by a very extensive experimentation कि वो लोग ने ये वैल्यू, ये जो एंगल है वो उसका रिलेशन ढूंढा है विथ रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यू कैन नॉट टेक द एंगल डायरेक्टली। ठीक है, okay, now I'm going to introduce a new you can say topic which is known as absolute refractive index. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे एक नया वर्ड आया है एब्सोल्यूट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from air to a given media, when a ray of light enters from air, एयर को थोड़ा हाईलाइट किया है मैंने, एयर टू अ गिवन मीडिया, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडिया or that medium is known as absolute refractive index। जब रे ऑफ लाइट एयर से किसी भी मीडिया में जाता है तो उस मीडिया का या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहां पे मैंने एयर लिखा है ना, उसकी जगह पे तुम वैक्यूम भी लिख सकते हो। किसी को वैक्यूम का स्पेलिंग पता है? गलत, VACUUM, रिविलेशन। लेट्स सर्च इट ऑन गूगल। ओह कूल। नहीं, गूगल आजकल क्या है, ज्यादा फ्रेंडली है बुक से, तो मैं सोचा गूगल पे दिखा दूं, लोग बुक पे कभी कभी डाउट आता है तो गूगल में चेक करते हैं, गूगल पे डाउट आता है तो बुक पे कोई नहीं चेक करता। गूगल पे डाउट आता ही नहीं है। सो एनीवेज, वैक्यूम का स्पेलिंग गलत मत लिखना कभी भी, VACUUM। ठीक है, रिमेंबर दैट। तो एयर या फिर वैक्यूम से अगर रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में जाती है तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि अभी तक जो हमने दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे ढूंढे, उसमें रे ऑफ लाइट कहां से आ रही थी, एयर से वाटर में, एयर से ग्लास में, तो ये वाटर और ग्लास का क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बहुत काम की चीज है। इसका क्या काम है मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी बुक में एक टेबल दिया गया होगा जिसमें सारे जो सब्सटेंसेस है उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लिस्ट होगा, जैसे यहां पे दिख रहा है तुमको, एयर, वाटर, केरोसिन, टर्पेंटाइन, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, डायमंड, दिख रहा है क्या? ऐसा है तुम्हारी बुक में लिस्ट? ये सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये हमें क्या बताते हैं पता है? ये हमें बताते हैं कि whenever a ray of light enters from air to this media, how much does it slow down?
सो सबसे ज्यादा स्लो किस में हो जाती है रे ऑफ लाइट? यस, डायमंड में। डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है। कितनी कम है पता है? इट इज 2.42 टाइम्स स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इससे मैं और एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो अभी कर देता हूं, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो मेनी टर्म्स, स्मॉल स्मॉल टर्म्स, ये सारी इंटरकनेक्टेड टर्म्स है। इफ यू रीड द चैप्टर ना, यू विल गेट लॉस्ट समवेयर, बट हियर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंटरलिंकिंग these terms with the topics which are already done. So next topic which I want to tell you is about optical density. Do you know the word density from class 9th? What do you mean by density? Mass per unit volume. That is physical density. Physical density of any body is mass per unit volume. ठीक है, यहां में मैं फिजिकल डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल डेंसिटी की। इट हैज नथिंग टू डू विथ फिजिकल डेंसिटी। इट इज नॉट मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट हैज नथिंग टू डू विथ मास और वॉल्यूम, but this is optical density. Optical density tells you or gives you information about how fast or slow the speed of light is in a particular medium. So मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी किससे रिलेटेड है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। मतलब तुम्हें अगर ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन करनी है, कम है या ज्यादा है, कितनी है, तो मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी का जो यूनिट है या वैल्यू है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज ऑलरेडी you can say parameter available to us. I will not give you the unit, the formula of optical density. I'm just explaining you the concept. ठीक है, what is optical density? Optical density is directly determined with the help of refractive index. More refractive index, more optical density. Less refractive index, less optical density. Simple है, ये नोट कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, एंड वाइस वर्सा। सो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडिया होते हैं ना, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडिया जितने भी यहां दिख रहे हैं ना तुमको, इसलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनका। जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडिया होते हैं, यू कैन डिवाइड देम into optically denser and optically rarer medium with respect to their optical density, with respect to their refractive index. So suppose you have two media, you can compare their optical density. For example, why am I writing here? I'll write here. This is a good एक तो मिसिंग है यहां से डायग्राम, बट फिर भी यहां पे तो है हमारे पास। यू सी वाटर एंड एयर आई हैव ऑलरेडी रिटन। सो वाटर के आगे अभी यहां पे दो मीडिया है, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है ऑलरेडी वी हैव नॉलेज अबाउट देम। सो वाटर, क्या मैं वाटर के साथ लिख सकता हूं ऑप्टिकली डेंसर, है कि नहीं, ऑप्टिकली डेंसर। और एयर में लिख सकता हूं मैं ऑप्टिकली रेयरर। डेंसर का ऑपोजिट वर्ड है रेयरर। सो वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर. Similarly, we can compare any two given transparent media with respect to their optical density. Whether who is denser, who is rarer. If you know the speed of light, if you know the refractive index, you can get idea about optical density also. That's it. यही है optical density. हाँ, तो यहां पे एक डेफिनेशन आ जाती है रिफ्रैक्शन की। डेफिनेशन नहीं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है कि अभी हमने देखा कि whenever a ray of light enters from water to air, it bends away from the normal. So इसको generalize कर सकते हैं हम लोग। Generalize मतलब whenever a ray of light enters from
optically denser medium to optically rarer medium, it bends away from the normal. ठीक है, सो ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ साथ ही तुम्हें लिखना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, तुम ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ ही लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन with respect to or in terms of optical density. ठीक है, दो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, इजी प्रॉपर्टी नंबर 1, whenever a ray of light enters from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. डायग्राम तुम इमेजिन कर सकते हो, हमने ऑलरेडी बना दिया है. एंड whenever a ray of light enters from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. डायग्राम तुम इमेजिन कर सकते हो. तो डेंसर और रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर रेयरर, दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू नाउ, ये भी तुम जानते हो, मतलब ये टर्मिनोलॉजी भी तुम्हें समझ में आ गई. ऑप्टिकल डेंसिटी. अब मैं बात करूंगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ये सब तुम्हारी बुक में नहीं है, ये सब मेरा नॉलेज मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, बिकॉज ये सब कनेक्टेड है. यहां पे हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक. तो कुछ चीजें मेरी एक्सक्लूसिव तुम्हें बताई गई है, कुछ चीजें टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, मोस्टली सब कुछ तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है, कुछ मतलब प्रॉपर तुम्हारा सिलेबस है, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट यू शुड नो एवरीथिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ही तुम रिफ्रैक्शन पूरा समझ पाओगे. नहीं तो क्या होगा, हाफ नॉलेज उठा के तुम चले जाओगे, एंड हाफ नॉलेज इज जस्ट फॉर स्कोरिंग मार्क्स. मेरा आइडिया सिर्फ स्कोरिंग मार्क्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये मैं बार बार क्लियर करता हूं. स्कोरिंग मार्क्स तो होगा, वो तो अपने आप होने वाला है. क्या मेरे पास जो नॉलेज है वो तुम्हारे पास होगा तो तुम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली कर पाओगे. लेकिन अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आया ना तो तुम उसको भी क्रैक कर लोगे. इसलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. तो डोंट थिंक कि मेरे को कोई ऐसा शॉर्ट नोट्स बना के दे दे जिससे मेरे मार्क्स आ जाए, वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है. उसके अंदर उतरना पड़ेगा तुम्हें किसी भी टॉपिक के, और ये रिफ्रैक्शन ऐसा एक टॉपिक है, इसलिए इसको आराम से करना पड़ता है. अब मैं लेंसेज की बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी लेंसेज आएगा आगे. लेंसेज इज अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, वहां पे अलग रूल्स है उसके, तो वो अलग क्लास में हम लोग आराम से कंप्लीट करेंगे. हियर आई एम कंसर्न ओनली विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज दैट इज वेरी क्रूशियल. इसमें कुछ भी मिस आउट किया ना तो नहीं समझेगा, और इसमें क्या फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, ये सब भी इन्वॉल्व है. इसके लिए वी कैन नॉट फूल अराउंड विद इट. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट. जो अभी वेदांत ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से एयर में जाके जाएगी तो क्या होगा. ठीक है, तो मैंने तुम्हें अभी एक फॉर्मूला बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. You agree with this or not? लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि what is the refractive index of medium 1 with respect to medium 2, what formula will you tell me? Exactly, speed of light in medium 2 with respect to speed of light in medium 1. पहला वाला फॉर्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
medium 2 with respect to medium 1 is equal to v1 upon v2. You notice one very interesting thing which can happen over here, that refractive index of medium 1 with respect to medium 2 times refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is v2 by v1 times v1 by v2, which is nothing but 1. That means refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is equal to 1 upon refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Wow, this is amazing. क्यों? क्योंकि refractive index of glass with respect to air will be 1 upon refractive index of air with respect to glass. That means यहां पे ध्यान से देखना, refractive index of glass with respect to air कितना था? 1.5. अभी डिराइव किया, ऊपर लिखा हुआ है यहां पे 1.5 को मैं लिख सकता हूं 3/2. सो 3/2 is equal to 1 upon refractive index of air with respect to glass. Therefore we can say that refractive index of air with respect to glass is 2 यहां पे आएगा, 3 यहां पे आएगा, 2/3 हो जाएगा, is reciprocal of the refractive index of glass with respect to air. मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. इससे क्या होगा? ठीक है यार, ये तो मिल गया हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, लेकिन इससे होगा क्या? इससे क्या होगा मैं तुम्हें एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं. सपोज मेरे पास एक बीकर है या फिर एक कंटेनर है. ठीक है, ये कंटेनर में वाटर है. ठीक है, और यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है. ये क्या है? इंसिडेंट रे. और यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं नॉर्मल. तो रे ऑफ लाइट कहां पे बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वो रेयर टू डेंसर जा रही है. अच्छा, यहां पे खत्म नहीं होती है स्टोरी, ये तो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है. अगर यहां पे मैं एक मिरर रख देता हूं, क्या रखता हूं? मिरर पता है ना सबको, प्लेन मिरर, सच दैट दिस in refracted ray is striking the mirror at 90 डिग्री. कोई आगे क्या होगा बता सकता है क्या? ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट सेम पाथ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी. ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई, फिर ये पहुंचेगी बाउंड्री ऑफ द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब यहां पे. और यहां पे क्या होगा पता है? ये होगी रिफ्रैक्ट कैसे होगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. हाउ मच? एग्जैक्टली दिस मच. मतलब वो अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी रे ऑफ लाइट. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मतलब जिस पाथ से रे ऑफ लाइट अंदर आई उसी पाथ से वापस जाएगी. क्यों? क्योंकि पहले वो एयर से वाटर में गई और फिर वापस जाते टाइम वाटर से एयर में, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल. तो जिस डिग्री से वो बेंड होती है एयर से वाटर आते टाइम, उसी डिग्री से वो बेंड होगी वाटर से एयर से जाते टाइम. यू सी द होल थिंग इज कनेक्टेड. दैट्स इट, खत्म. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा समझ गए अभी तुम. कुछ नहीं बचा है. एक चीज बची है छोटी सी, बताता हूं. वो कुछ नहीं, वो तो बहुत बच्चे वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इसके लिए एक तो ये डायग्राम ड्रॉ करना तुम. दूसरी चीज जो तुम्हें लिखनी है वो ये है. ये मतलब माइंड ब्लोइंग चीज है ये पूरी चीज. जो मैंने क्या प्रूव किया कि दो मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. ये मैंने प्रूव किया यहां पे. वो मल्टीपल के टर्म्स में वी कैन नॉट टॉक. जैसे मैंने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बाय 1.5 टाइम्स, यू कैन नॉट से. जनरली सी दैट इज ओनली ट्रू फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. That statement is true for absolute refractive indices. But if you talk in reverse terms, you cannot. There is no statement as such. पहले ये लिख लो, फिर और एक छोटी चीज एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या बोले कि एक छोटा डेरिवेशन करवाऊंगा मैं तुम लोगों से, ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दें. बहुत हो गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्लास में.
इट्स वेरी कोल्ड, यू फील कोल्ड और यू फील नॉर्मल? ओके, मतलब इतना एसी ठीक है ना? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं करवा रहा हूँ? कोई है वहां पे जिंदा? सन्नाटा है, कोई नहीं, सब निकल गए, या मेरा इंटरनेट कनेक्शन निकल गया? व्हाट है इंटरनेट कनेक्शन? $500, दैट्स एन एरर। 500 रुपया ले लो, बात खत्म करो, एरर को भूल जाओ। डूड, है ना इंटरनेट कनेक्शन? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। जब मैंने सर्च की थी तब तक तो जिंदा था इंटरनेट। ठीक है, अब क्या हो गया? एक मिनट, मीट में जाते हैं। सर्वर एरर, ठीक है, तुम लोग लिखो यार, तुम लोग टेंशन मत लो। फिजिकल क्लास में आने वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन मत लो। लिख लिया इतना? इतनी सी मेरे मोबाइल में क्या था, वो लोग वहां पे मार रहे थे। ओके, सो एवरीवन इज अप टू डेट विद दिस, ठीक है? अब दो चीजें मुझे तुम्हें और बतानी है, एंड देन वी कैन कंक्लूड टुडेज क्लास। टू मोर थिंग्स, वेरी स्मॉल थिंग्स। ये बनाया ना सबने? दिस इज इजी, ओके, इजी टू मेक, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। चलो इसके बाजू में ही मैं लिख देता हूं जो मुझे लिखना है। सो सपोज इफ आई वांट टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या करूं मैं? दो तरीके हैं, बहुत बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, बट मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं लिखूंगा VW/VG, ठीक है, जिससे मैं निकाल सकता हूं जो भी वैल्यूज है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 इंटू 10⁸ और स्पीड 2 × 10, तो इससे मैं निकाल सकता हूं, जो भी आएगा आंसर तुम्हें मिल जाएगा, नंबर। दूसरा एक फॉर्मूला है, दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आर यू श्योर, वाटर, मीडियम 1 और मीडियम 2। चलो हम लोग इसको LHS RHS बना के सॉल्व करते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? हम लोग प्रूव करेंगे ना इसको, सॉल्व क्यों, मतलब आंसर क्यों दे दूं मैं डायरेक्टली? VW कितना है बताओ? 2.25 टाइम्स 10⁸ 8। VG कितना है? 2 × 10⁸ ये कैंसिल हो जाएगा, 225/200, 25 9 जा 25, 8 जा 9/8, ठीक है? अच्छा, 9/8 तो पक्का है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8, ये तो मैं हक से बोल सकता हूं। अब मैं जो दूसरा फॉर्मूला इसकी बात करूंगा, तो लेट्स सी कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है।
एक तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसको सिर्फ म्यू जी भी लिख सकते हैं, अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या फिर जो अथर्व बोल रहा है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखते हैं कौन सा 9/8 से मैच करता है, वो फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? 4/3 है ना, 1.333 मतलब 4/3। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सॉरी ग्लास का 1.5 है, ग्लास का 1.5 है, इसका मतलब है 3/2 एंड 4/3, दैट इज 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 9/8 आ गया। और दूसरा है जो अथर्व बोल रहा था, अथर्व तू ये बोल रहा था ना, देखते हैं ये क्या आता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है? 4/3, और ग्लास क्या है? ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? 8/9, और करेक्ट आंसर क्या है? 9/8। मतलब whenever you have to find refractive index of one medium with respect to other, ठीक है, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यूमरेटर में रखना है, और जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम्हें कहां रखना है? नीचे रखना है। एक मिनट, यहां पे एक गलती कर दी मैंने, W होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है? ये वाला, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, ये वाला करेक्ट नहीं है, प्रूव हो गया ये। Refractive index of glass with respect to water is absolute refractive index of glass upon absolute refractive index of water. This is another formula I am giving you. So matlab we were just talking about when ray of light is entering from air to a medium. Now we are talking about refractive ray of light entering from one medium to another, and none of them is air. Still we can find, still we can calculate, because there are मेथड्स। ठीक है, एक तो ये चीज मुझे बतानी थी, ये भी हो गया। अब आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, दैट इज नोन एज पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट है, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। इसमें एक रिफ्रैक्शन का बहुत ही यूनिक केस है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं तुम लोग के साथ। द केस इज व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स ओब्लिकली ऑन अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब थ्रू इट्स साइड, साइड से जब एंटर करता है तो यहां पे मैं क्या बनाऊंगा? नॉर्मल। अब ये रे ऑफ लाइट कहां पे बेंड करेगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पे फिर से ये टकराएगा और यहां पे फिर से बनेगा नॉर्मल, और ये रे ऑफ लाइट कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड इन दिस केस लेट मी टेल यू, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। व्हाट इज दिस? रिफ्रैक्टेड रे। एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। इमर्जेंट मतलब इमर्ज हो रही है बाहर, रे ऑफ लाइट इमर्ज हो रही है, सो दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों पता है? ये दोनों एंगल इक्वल है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज दीज टू नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों सरफेसेस पैरेलल है क्योंकि पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब है, और ये पैरेलल सरफेसेस पे दो परपेंडिकुलर बनाए नॉर्मल, तो वो दो नॉर्मल भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे, और ये दोनों जो एंगल्स है ना आर होंगे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ E, emergence, and experimentally it has been found that I is equal to E. Angle of incidence and angle of emergence equal होता है. And one more thing, that if you extend it further, you know what is this? This is the original direction of incident ray of light, dotted line. Then this direction and the direction of emergent ray, they are parallel to each other.
ये दोनों पैरेलल होंगे, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब रे ऑफ लाइट पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर इमर्जिंग इट गेट्स लैटरली डिस्प्लेस्ड। इट डज नॉट बेंड, बट इट गेट्स लैटरली डिस्प्लेस्ड, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। सो दिस इज द शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें अगर ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करोगे? ये जो ग्लास है ना, उसकी थिकनेस ज्यादा कर लो। मोर थिकनेस मोर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, ये जो ग्लास का मटेरियल है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दो। तुम बोलोगे सर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स है 1.5। ऐसा नहीं है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लास, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लास, और सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। मिनिमम 1.5 होता है, 1.6 का भी ग्लास आता है, 1.7 1.8 का भी ग्लास आता है। और एक ग्लास की जगह अगर तुम ऐसा पैरेलल साइडेड डायमंड यूज करोगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी छोटा अगर बना सकते हैं तो, बिकॉज डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हाई होगा। और एक चीज है जो मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग से बताना चाहता हूं, तुम्हें पता होगा ये क्या है? ये विबग्योर। विबग्योर क्या है? द कलर्स फ्रॉम विच व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ। व्हाइट लाइट इन सारे कलर से बनी है, ठीक है। अगर तुम ये ग्लास स्लैब पे रेड लाइट डालोगे, रेड, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा, क्योंकि वो बेंड नहीं होती रेड लाइट। इसलिए सिग्नल में रेड लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि वो बेंड नहीं होती, तुम्हें दूर से दिखता है। बट अगर वायलेट लाइट डालोगे इसमें तो बहुत ज्यादा बेंड होगी, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगा। सो मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है थिकनेस, दूसरा डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा। तीसरा डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और चौथा डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। विबग्योर वायलेट के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड के लिए सबसे कम, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सो इतना इतना डिटेल नहीं दिया है तुम्हारी बुक में। तुम्हारी बुक में ये जो पार्ट है ना, दिस इज जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी में जब जाके तुम्हें दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट, उसके लिए रखा गया है। बाकी उसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं। बट दिस इज द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। ठीक है, क्लियर हुआ रिफ्रैक्शन क्या है? एंड टू फिनिश टू, क्या बोलता हूँ, बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, स्टार्ट टू एंड। चलो मैं I'll stop the video recording exactly 1.5 hours.